वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा पद्मोद्भव पाहि अलमेल् मंगा पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि श्रीपाञ्चरात्रागमान् तत्तत्वैदिकतान्त्रिकः प्रणयिनः पूज्या विलासाश्रयान् भारद्वाजवतौपगायनसुधीशाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चऋषीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्व्रतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द। अस्य श्रीभगवतः महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीपराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायाम् अपभरणी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्याम् अमावास्यायां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्रीपद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ वैवाहिक महोत्सवकर्मणि कल्याणोत्सवानिकी समर्पिंచుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్ర రాశిని చేతులు జోడించి అమ్మవారిని బాగా ప్రార్థన చేయండి. మీ యొక్క విన్నపములను అమ్మవారి యొక్క పాద పద్మముల యందు నివేదించుకోండి. वीर्यविजय अभयायुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं
श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रमार्गेण कल्याणमहोत्सवम् आचार्यमुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती। मंगलवाद्यम। ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருச்செங்கனூரிலிருந்து திருமலை, திருப்பதி திருச்செங்கனூரிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ போகசீனிவாசர் சமேத ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை தாயாரின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்துறையில் கண்டு அனுபவிக்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் என்று மங்களமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்த்தி, மேலும் பல திருமண நாளையும் பிறந்த நாளையும் கொண்டாடும்படியான அந்த பாக்கியத்தை அனுகிரகிக்கும்படி பெயரும் கருங்கடலே நோக்குமாறு ஒன்பூ உயரும் கதிரவனே நோக்கும் உயிரும் தருமனையே நோக்கும் உன் தாமரையாள் கேழ்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு என்று முதல் திருவந்தாதியில் சுவாமி பொய்கை ஆழ்வார் சாதித்தருளியவாறு அவர் திருவடி வாரத்திலே பற்றி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்த்தி இன்றைய தினம் மேலும் மேலும் பல நன்மைகளை பெற வாழ்த்தி வரவேற்கின்றது. ஆறுகள் தன் கணவனான பொங்கி எழுகின்ற கடலையே சென்று சேரும், தாமரை மலர் சூரியனை கண்டே மலரும், உயர்ந்த பகவத் ஞானம் திருமகளோடு கூடிய எம்பெருமானையே சென்று வணங்கும். பொய்கை ஆழ்வாரின் திருவாக்கை அடிவற்றியே ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீ போகஸ்ரீனிவாசன் திருவடி இணைகளில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. மேலும் பல மங்களங்களை வாரி வழங்கும்படியாக தாயாரின் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தித்து இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்னம் இந்த பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தில் செய்து கொண்டு, அதாவது விதித்தபடியாக ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை, பூசுத்தி, கங்கணங்கள் பரிமாற்றங்கள் என்று பலவாறாக மங்கள காரியங்களை துவங்க இருக்கும். அதற்கு முன்பாக பெருமான் அணிமாமலர் மங்கை, அதாவது தாயாரோடு என்றும் விரும்பி கலந்து இருந்த இருப்பையும் அசுர இனத்தவர்களின் மீது இரக்கமற்ற குணத்தை உடைய பெருமான், அதாவது ஒருபுறம் அடியார்கள் மீது வாஞ்சையாக இருப்பதும், அதே திருக்கண்கள் அசுரர், அதாவது அடியார்களுக்கு ஒரு ஒரு இம்சையை, அசலாருக்கு ஹிம்சையை கொடுக்கும் அந்த அசுரர் குணத்தை உடையவர்கள். இப்பொழுது அசுரர்கள் இல்லை, அந்த அசுர குணத்தை உடையவர்களின் அவர்களை தண்டிக்கும்படியாக இருக்கும்படியான இந்த பெருமான் செல்வநாரணன் என்ற சொல் கேட்டலுமே மல்கும் கண்பனி நாடுவன் மாயமே அல்லும் நன் பகலும் இடைவீடின்றி நல்கி என்னை விடான் நம்பியே நம்பி இருப்பவர்களை விடமாட்டான் இந்த எம்பெருமான். எப்படி கிருஷ்ண ராம திருசிம்ம வாமன அவதாரங்களில் எடுத்து நேர்கொடு நேராக அடியார்களை ரட்சித்தானோ, அதற்கு இப்பொழுது அர்ச்சை திருமேனியிலும் அந்த குணம், கல்யாண குணம் விதி விலக்கு அல்ல என்பதே திருவாய்மொழியில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திரு என்ற அடைமொழி சொல்லுக்கு செல்வ என்ற சொல்லை அடைமொழியாக இட்டு செல்வநாரணன் என்றே துவக்கி அருளி செய்துள்ளார். இந்த பாசுரத்தில் திருமகளோடு கூடிய தேவனை ஸ்ரீ கோவிந்தனை நினைத்தவாறே நம்மாழ்வார்க்கு கண்களில் நீர் பெருகுவதாக அருளி செய்துள்ளார். திருவே செல்வம் ஆதலால் திரு நாரணனை செல்வநாரணன் என்றே சாதித்தருளியுள்ளார். என்றும் அகலாது இருக்கும் எம்பெருமானோடு கூடியிருப்பதே இந்த தாயார். இந்த தாயார் இல்லாது இவனுக்கு எந்த காரியமும் செல்லுபடி ஆகாது. இத்துணை வன்புகழ் நாரணன் தின்கழல் சேர்ந்து உய்வு பெறுவதோ மேன்மை தரும் என்று ஆழ்வார் சாதித்தருளியது அல்லது உபதேசித்தருளியுள்ளது என்று கொள்ள வேண்டும். தாயாரோடு கூடிய பெருமான் இரவு பகல் என்று இடைவீடின்றி தன்னை அழைக்கும் வணங்கும் அடியார்கள் இடத்தே அன்பு வைத்து குறைகளை தீர்க்கும் குணங்களாலே அந்த குணங்களால் மட்டுமே இவன் நிறைந்தவன். ஒன்றும் அறியாத எளிய அன்பர்களையே பெருமதிப்பாக நினைந்து அவர்களை விடாது ரட்சிக்கின்றான். அவர்களிடத்திலே இவன் வேண்டுவது ஒன்றுமில்லை. இவர்களிடத்திலே தன்னிடத்தில் உழுவதை அத்தனையும் உடுத்துவிட்டு மேலும் அந்நியவத இன்னும் என்ன வேண்டும், இன்னும் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு கேட்டு அருள்பவதே இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திவ்ய கல்யாண குணம். இந்த திவ்ய தம்பதிகள் நித்திய சம்சாரிகளை பல இன்னல்களுக்கு இடையேயும் இவர்களையே நம்பிக்கொண்டு நினைந்து, அதாவது பெருமானையும் பிராட்டியும் நினைத்து கொண்டு உருகி தங்களின் இன்னல்களை களைய வழிபடும் பக்தர்களையே
பேறு பெற்ற நாய் நினைந்து கொண்டு, அதாவது அந்த பக்தர்களே தங்களுடைய பேரு தங்களுக்கு வேண்டுவது எதுவும் இல்லை என்னும்படியாக பெறாத பேறு பெற்றவனாய் நினைந்து கொண்டு அந்த அன்பர்கள் பால் அருள்மாறி பொழியும் திவ்ய தம்பதிகள். இத்தகைய செல்வநாரணன் நம்பி பரிபூர்ணனன், பக்தர்களை என்றும் கைவிடாதவன். அந்த நம்பி என்றால் என்ன? அவனை நம்பி வருபவர்களுக்கு அவன் நம்பி என்று பெயரிட்டார்கள். செல்வநாரணன் என்று உள்ளம் உரிய ஆழ்வார் சாதித்துடைய பாசுரம் உயர்ந்த பாசுரம். சொல்லும் பொழுதே தாயார் உள்ளம் மகிழ்ந்து நம்மை அருகிருந்து நோக்கும்படியாக தாமரை கண்களால் நோக்கி நம் இன்னல்களை தீர்க்கும்படியாக நன்றாக வளர்ந்து விழித்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாள். பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அடியார்களை என்றும் நழுவ விடாத குணத்தை நினைந்து உள்ளம் முருகி சாதித்துடைய ஈரச் சொற்கள் இது. பகவான் அவதரிக்கும் காலம் தோறும் தாயாரும் அவதரித்தாகிறது. இல்லாவிடில் ஜீவர்களின் நிலை என்னவாகும்? பகவானுடைய அவதார காரணமே ரசானுபாவமாக இருந்திருக்காது. ஆக இவள் கூட துணையில்லாத அனைத்து பக்தர்களும் தவித்து போய்விடுவார்கள். எப்படி அதாவது உயர்ந்த வெயில் காலத்தில் ஒரு நிழல் தருவதை போல பிராட்டியின் நோக்கும் அனுகிரகம் நமக்கு நிழல் தருகிறது. விஸ்வக்சேன ஆராதனை பிறகு அர்ச்சக சுவாமி தீப ஆரத்தி எடுத்த பின்பு மேலே உள்ள கிரமங்களை செய்ய இருக்கும் இந்த வேளையில் ஸ்வரூபம் சுவாதந்திரியம் பகவதः இதம் சந்திரவதனே त्वत् ஆஸ்லேஷ உத்கர்ஷாத் பவதி கலு நிஷ்கர்ஷ சமயே त्वमासीर् மாதஸ்ரீः கமிதுः இதமித்தந்த்வ விபவः தத் அந்தர்பாவாத் त्वां ந பிருதக் அபிதத்தே ஸ்ருதிரபி. ந பிருதக் என்றால் பிரித்து பார்ப்பது. ந பிருதக் பிரித்து பார்க்க இயலாது. எப்படி? யாரோடு? இவனோடு இருந்து. இவன் அவதார காலங்களில் தோறும் இவன் அவதரிக்கிறாள் இல்லையா? ஆகவே அவதார காலத்திலும் கூட பெருமான் பிராட்டியை விட்டு அவதரித்தான் இல்லை. பிராட்டியும் கூடவே வந்து அவதரிப்பாள். அவளாலும் அங்கே இருக்க முடியாது. பெருமான் வெறும் நிவாசன் இல்லை, இவன் என்றும் ஸ்ரீ நிவாசன். ஆக இவனையே நம்பி இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்காக தாயாரோடு கிட்டி பலனை பெறுதலாகும். அதாவது திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியிலே நாம் பலனை பெற்று அனுபவிக்க இயலும் சிறந்த பலன் நீடு நின்ற பலனாக அமையும். தாயார் ஸ்ரீ பத்மாவதியை முன்னிட்டு கொண்டே அறிதல் இயலும் எம்பெருமானை குறித்து பேணிக் கருமாலை பொன்மேனி காட்டா முன் காட்டும் திருமாலை நங்கள் திரு என்கிறபடியே தாயாரே பரதத்துவமான பெருமானை அடையாளம் காட்டுகின்றவள் என்று இவ்விடத்தில் நாம் அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இவனே ஸ்ரீ கோவிந்தனின் சுரூபத்தை நிரூபகம் செய்பவள். தாயார் ஸ்ரீ பத்மாவதி இயற்கையாகவே பெருமானுக்கு உடமையாக இருக்கின்றாள். ஆகவே திருமகளின் சேர்த்தியாலே திருவேங்கடவன் எல்லா பெருமகளையும் அடையச் செய்கின்றாள். பிராட்டி நம்பொருட்டு பெருமானுக்கு காக்க வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்து இருவரும் சேர்ந்த சேர்த்தியிலே நமக்கு அனைத்து பலன்களையும் வேண்டு பலன்களையும் அனைத்தையும் அனுகிரகித்து நீடின்ற பலன்களாகவும் அழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். இந்த மண்மிசை பெரும் பாரம் நீங்க ஒரு பாரத பெரும்போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து தம் அடியார்களுக்கு துணை இருந்து எதிரிகளை வேறறுத்து பூமியின் பெருஞ்சுமையை போக்கியவர் தாயாரோடு கூடி அப்பொழுதும் இவன் அவதரித்தாகிவிட்டது. எப்படி? பாரத பெரும்போர் எப்படி அந்த பாண்டவர்களுக்காக அவன்றோ துணை செய்தான். ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு 1000 திருநாமங்கள் உள்ளன. இக்கருத்தை ஸ்ரீ பீஷ்மாச்சாரியர் மகாபாரதத்தில் சகசிராஸ்ய சகசிராட்ச சகசிரச்சரணோ விபு சகசிரபாஹூ சர்வஜ தேவோ நாம சகசிரவானு என்கிறார். இந்த 1000 நாமங்களில் ஏதோ ஒன்றை நாம் உச்சரித்து கொண்டால் இருந்தாலே போதும். இந்த திவ்ய தம்பதிகள் உகந்து நமக்கு அளிக்கும் பலன்கள் எத்தனையோ பேர். 1000 திருமுகங்களை உடையவன் எம்பெருமான். இவ்வாறே திருக்கண்களும் திருவடிகளும் திருக்கரங்களும் என்று 1000 கொண்டுள்ளான். இவனே சர்வஜன் சர்வசக்தன் பேராயிரம் கொண்டவன் என்றே ஸ்ரீ பீஷ்மாச்சாரியார் தன் அம்பு படுக்கையில் கிடந்திருந்த சமயத்தில் கண்டவாற்றை உள்ளபடி கூறியுள்ளார். இதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை, பொய்யும் கலசாதது. இவன் பீஷ்மாச்சாரியார் தான் கண்டவாற்றை உள்ளபடி தர்மருக்கு குந்தி புத்திரர்களுக்கு உபதேசித்தது அந்த அம்பு படுக்கையிலே. ஆகையால் நிச்சயமாக இதன் பொருள் நன்றாக விளங்கக்கூடும் அடியார்களுக்கு.
சுவாமி ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழி 9ஆம் பத்து 3ஆம் திருவாய்மொழியில் ஓர் ஆயிரமாய் உலகெழிக்கும் என்று பாசுரத்தை மேலே சேவிப்போம். இப்பொழுது சற்று திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய முந்திர முன்னம் கிரமங்களை சற்று சேவிப்போம் கண்குளிர. जुह्वेष्यग्निस्त्वा आह्वयति देवयज्ञाय उपभृदेहि देवस्त्वा सविताह्वयति देवयज्ञाय अग्ना विष्णु मा वामवक्रमिशं विजिहाथ मा सन्ता आप्तं लोकं मे लोककृतौ कृणुतं विष्णोस्थानमसीत इन्द्रो अकृणोत् वीर्याणि समारभ्योर्ध्वो अध्वरो दिवि स्पृशमः कृतो यज्ञो यज्ञपते ज्योतिषा ज्योतिरङ्काम् आजस्य मा प्रसवेनो ओद्ग्राभेणो दग्रभीत् अथ सपत्नागम् इन्द्रो मे निग्राभेणाधरागम् कृतः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवानिन्द्राग्नि मे विशोचीनान् व्यस्यताम् वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वाक्तगं रिहाणा पियन्तु वयः तां पृषतयस्थदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरया आयुष्पा अग्ने स्यायुर्मे पाहि चक्षुष्प अग्नेसि चक्षुर्मे पाहि ध्रुवासि यं परिधिं पर्यधत्थ अग्ने देवपणिभिर्पीयमानः तन्त एतमनुजोषम्भरामिने देशत्वदपचेतयातै यज्ञस्य पाथ उपसमितगं सग्स्रावभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा बर्हिषदश्च देवा इमा वाचमभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् बर्हिषिमादयध्वम् अग्नेर्पामपन्नगृहस्य सदसि सादयामि सुम्नाय सुम्निनि सुम्ने माधत्तम् धुरिधुर्यौ पातमग्ने दब्धायो शीततनो पाहि माद्य दिवः पाहि प्रसिद्ध्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरत्मन्यै पाहि दुश्चरितादविषण्णः पितुं कृणु सुषदायो निग्स्वाहा देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमितमनसस्पते इमन्नो देवदेवेषु यज्ञस्वाहा वाचि स्वाहा वाते धाः उभावामिन्द्राग्नि आहुवध्या उभाराधस सहमादयध्यै उभादातारा विशागं रयीणामुभावाजस्य सातये हुवेवाम् अश्रवगं हि भूरिदावत्तरा वां इजामातुरुतवाघास्यालात् अथा सोमस्य प्रयति युवभ्यामिन्द्रा अग्नि स्तोमञ्जनयामि नव्यम् इन्द्रा अग्नि नवतिं पुरोदासपत्नीरधूनुतं साकमेकेन कर्मणा शुचिन्नुस्तोमन्नवजातमद्येन्द्र अग्निवृत्रहणा जुषेथा उभाहि वागं सुहवाजो हवीमिता वाजगं सद्य उशते धेष्ठा वयमुत्वा पथस्पते रथन्न वाजसातये धिये पूषन्न युज्महि पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कं सनोदासच्छुरुधश्चन्द्राग्राधियं धियगं शेषधाति प्रपूषा क्षेत्रस्य पतिना वयगं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडातीदृशे क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिन्धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्वा
मधुश्च्युतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम आदेवानामपि पन्थामगन्मयच्छक्नवाम तदनुप्रवोढुम् अग्निर्विद्वान् स यजात्सेदुहोतासो अध्वरान् सरुतोन् कल्पयाति यद्वाहिष्ठं तदग्नजे बृहदर्च विभावसो महिषीवत्त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः त्वमग्ने व्रतपा असि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्वीड्यः यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषा अन्देवा अविदुष्टरासः अग्निष्टद्विश्वमापृणाति विद्वान् येभिर्देवागं ऋतुभिः कल्पयाति ॐ आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चस ओषधे त्रायस्वैनग्गस्वधिते मैनगं हिगंसेर्देवश्रूरेतानि प्रवपे स्वस्त्युत्तराण्यशय्यापो अस्मान् मातरः शुन्धन्तु घृतेन नो घृतपुवः पुनन्तु विश्वमस्मत्प्रवहन्तु रिप्रमुदाभ्यः शुचिरा पूत एमि सोमस्य तनूरसि तनुवं मे पाहि महीनां पयोसि वर्चोधा असि वर्चोधा असि वर्चो मयि धेहि महीनां पयोसि वर्चोधा असि वर्चो मयि धेहि वृत्रस्य कनीनिकासि चक्षुष्पा असि चक्षुर्मे पाहि चित्पतिस्त्वा पुनातु वाक्पतिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्तस्य ते पवित्रपते पवित्रेण यस्मैकं पुने तच्छके जमावो देवास ईमहे सत्यधर्माणो अध्वरे यद्वो देवास आगुरे यज्ञियासो हवामह इन्द्रा अग्नि द्यावा पृथिवी आप ओषधे स्त्वं दीक्षाणामधिपतिरसीहम सन्तं पाहि आकु उत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधायै मनसेऽग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णे अग्नये स्वाहा पो देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो या वा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिर्नो हविषा वृधातु स्वाहा विश्वे देवस्य नेतुर्मर्तो वृणीत सख्यं विश्वे राज इषुध्यसि युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहर्क्सामयोः शिल्पे स्थः ते वामारभेते मापातमास्य यज्ञस्योदृच इमान् धियगं शिक्षमाणस्य देवक्रतुं दक्षं वरुणसगं शिशाधियजाति विश्वादुरितातरेम सुतर्माणमधिनावगं रुहेमोर्गस्याङ्गिरस्योर्नम्रद ऊर्जं मे यच्छ पाहि माहिगंसेर्विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्य शर्म मे यच्छ नक्षत्राणां मातीकाशात् पाहीन्द्रस्य योनिरसि माहिगंसेः कृष्यैत्वा सुसस्याजै सुपिप्फलाभ्यस्तौषधीभ्यः सुपस्था देवो वनस्पतिरोर्ध्वो मापाह्योदृच स्वाहा यज्ञं मनसा स्वाहा या वा पृथिवीभ्यागस्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा यज्ञं वातादारभे दैवीं धियं मनामहे सुमृडीकामभीष्टये वर्चोधा यज्ञवाहसगं सुपारानो असद्वशे ये देवा मनोजाता मनोजुजः सुदक्षा दक्षपितारस्ते नः पान्तु ते नो वन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहाग्ने त्वगं सुजागृहि वयगं सुमन्दिषीमहि गोपाय नः स्वस्तये प्रबुधे नः पुनर्ददः त्वमग्ने व्रतप असि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्वीड्यः विश्वे देवा अभिमामापवृत्रन् पूषा सन्न्यासोमो राधसा देवः सविता वसो अर्वसुदा वारा स्वे यत्सोमा भूयो भरमा प्रणन् पूर्त्या विराधिमाहमायुषा चन्द्रमसि मम भोगाय भव वस्त्रमसि मम भोगाय भवोस्रासि मम भोगाय भव हयोसि मम भोगाय भव छागोसि मम भोगाय भव मेषोऽसि मम भोगाय भव वायवे त्वा वरुणाय त्वा निरृत्यै त्वा रुद्राय त्वा देवीरापो अपान्नपाद्य ऊर्मिरः विश्य इन्द्रिया वा अन्मदिन्तमः
तं वोमावक्रमिषमच्छिन्नं तन्तुं पृथिव्या अनुगेशं भद्रादभिश्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुर एताते अस्त्वथेमवस्य वर आपृथिव्या आरे शत्रु उन्कृणुहि सर्ववीर एदमगन्मदेव यजनं पृथिव्या विश्वे देवा यदजुषन्त पूर्वरक्षामाभ्यां यजुषा सन्तरन्तो राजस्पोषेण समिषामदेम इयन्ते शुक्रतनोरिदं वर्चस्तया सम्भवभ्राजं गच्छजूरसि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे तस्यास्ते सत्यसपसः प्रसवे वाचो यन्त्रमशीय स्वाहा शुक्रमस्य मृतमसि वैश्वदेवगं हविः सूर्यस्य चक्षुरारुहम् अग्ने रक्षणः कनीनिकां यदेतशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि यज्ञियासि क्षत्रियास्यदितिरस्य भजतः शीर्ष्णे सा नः सुप्राची सुप्रतीची सम्भव मित्रस्त्वापदिबध्नातु पूषाध्वनः पात्विन्द्रायाध्यक्षायानुत्वा माता मन्यतामनुपितानुभ्राता स गर्भ्यो न सखा सयूथ्यः सा देवी देवमच्छेहीन्द्राज सोमगुं रुद्रस्त्वा वर्तयतु मित्रस्य पथा स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि सहरय्या पश्यसि रुद्रास्य तिथिरस्यादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्नेरन्वतु रुद्रो वसुभिराचिकेतु पृथिव्यास्त्वामूर्धन्नाजिघर्मि देवयजन इडायाः पदे घृतवति स्वाहा परिलिखितगं रक्षः परिलिखिता अरातय इदमहं रक्षसो ग्रीवा अपि कर्तामि योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्म इदमस्य ग्रीवा अपि कर्तामि अस्मै राजस्त्वे राजस्तोते राजः सन्देवि देव्योर्वश्या पश्यस्वत्वष्टिमतीते सपेय सुरेतारेतो दधाना वीरं विदेय तव सन्दृशिमाहगं राजस्पोषेण वियोषम् अगुं शुनाते अगुंशुः पृच्छ्यतां परुषा परुर्गन्धस्ते काममवतु मदाय रसो अच्युतो मात्योऽसि शुक्रस्ते ग्रहोऽभित्यं देवगं सवितारमूण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवसगं रत्तधामभिप्रियं मतिमूर्ध्वायस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमेत सुक्रतुः कृपासुवः प्रजाभ्यस्त्वा प्राणायत्वा व्यानायत्वा प्रजास्त्वमनुप्राणिः प्रजास्त्वामनुप्राणन्तु सोमन्ते क्रीणाम्योर्जस्वन्तं पयस्वन्तं वीर्यावन्तमभिमातिशाहगं शुक्रन्ते शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृतममृतेन संयत्ते गोरस्मे चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापतेर्वर्णः तस्य अस्ते सहस्रपोषं पुष्यं चाश्चरमेण पशुना क्रीणाम्यस्मे ते बन्धुर्मयि ते रायश्रयन्तामस्मे ज्योतिः सोमविक्रयिनितमो मित्रो न एहि सुमित्रधा इन्द्रस्योरुमाविश दक्षिणमुषन्नुषन्तग्स्यो नस्यो नग्स्वान भ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्तसुहस्त कृशानवेते वः सोमक्रयणास्तान् रक्षध्वं मावोदभन् उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागं रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृतागम् अनु उर्वन्तरिक्षमन्विष्यदित्यास्सदोऽस्यदित्यास्तद आसीदास्तब्धाद्या वृषभो अन्तरिक्षममिमीत परिमाणं पृथिव्या आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राट् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि वनेषु व्यन्तरिक्षं तथा नवाजमर्वत्सु पयो अग्निजासु हृत्सु क्रतुं वरुणो इक्ष्वग्निन्दिवि सूर्यमदधात् सोममद्रावुदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाज सूर्यम् उस्रावेतन्धूरुषाहावनश्रू अवीरहणौ ब्रह्मचोदनौ वरुणस्य स्कम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भसर्ज नमसि प्रत्यस्तो वरुणस्य पाशः प्रत्यवस्वभुवस्पते विश्वा अन्यभिधामानि मात्वा परिपरि विदन्मात्वा परिपन्थिनो विदन्मात्वा वृका अघायवो मा गन्धर्वो विश्वावसुः आदघच्छेनो भूत्वा परापत यजमानस्य नो गृहे देवैः सग्स्कृतं यजमानस्य स्वस्त्ययन्यस्य पिपन्थामगस्महि स्वस्तिगामनेहसम्
येन विश्वाः परिद्विषो वृणक्ति विन्दते वसुनमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतगं सपर्यत दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शगुंसत वरुणस्य स्कम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भसर्ज नमस्युन्मुक्तो वरुणस्य पाशः अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वाग्नये त्वा राजस्पोषदावण्णे विष्णवे त्वा शेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वापरिभूरस्तु यज्ञङ्गयस्थानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचरा सोमदुर्या नदित्याः सदोऽस्यदित्याः सद आसीदवरुणोऽसि धृतव्रतो वारुणमसि संयोर्देवानागं सख्यान्मा देवानामपसश्चित्स्महि आपतये त्वा गृह्णामि परिपतये त्वा गृह्णामि तनो नप्त्रे त्वा गृह्णामि शाक्वराय त्वा गृह्णामि शक्मन्नो जिष्ठाय त्वा गृह्णामि अनाधृष्टमस्य नाधृष्यं देवानामोजोऽभिषस्तिपा अनभिषस्तेऽन्यम् अनुमे दीक्षान् दीक्षापतिर्मन्यतामनुतपस्तपस्पतिरञ्जसा सत्यमुपगेशगं सुविते माधाः अगंशुरगंशुस्ते देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविद आतुभ्यमिन्द्रः प्यायतामात्ममिन्द्राय प्यायस्व आप्यायय सखीन् संज्ञा मेधया स्वस्तिते देव सोम सुत्यामशीयेष्टाराजः प्रेषे भगायर्तमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्या अग्ने व्रतपते त्वं व्रताना अमृतपतिरसि या मम तनूरेषा सा त्वयि या तव तनूर्यगं सामयि सहनौ व्रतपते व्रतिनो और्व्रतानि याते अग्ने रुद्रिया तनोस्तया नः पाहि तस्यास्ते स्वाहा याते अग्ने याशया रजाशया हराशया तनोर्परिशिष्ठा गह्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा वित्तायनीमेऽसि तिक्तायनीमेऽस्यवतान्मानाथितमवतान्मा व्यथितं विदेरग्निर्नभो नामाग्ने अङ्गिरो योऽस्यां पृथिव्यामस्यायुषा नाम्ने हि यत्तेनाधृष्टन्नाम यज्ञियन्तेन त्वा दधेऽग्ने अङ्गिरो यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यामस्यायुषा नाम्ने हि यत्तेनाधृष्टन्नाम यज्ञियन्तेन त्वा दधे सिगंहीरसि महिषीरस्युरुप्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथताम् ध्रुवासि देवेभ्यः शुन्धस्व देवेभ्यः शुम्भस्वेन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात् पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात् पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु सिगंहीरसि सपत्नसाही स्वाहा सिगंहीरसि सुप्रजावनि स्वाहा सिगंहीरसि राजस्पोषवनि स्वाहा सिगंहीरस्यादित्यवनि स्वाहा सिगंहीरस्यावह देवान् देवयते यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा विश्वायुरसि पृथिवीन्द्रगंह ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्द्रगंह अच्युतक्षिदसि दिवन्द्रगंहाग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः सुवाग्देवदुर्यागुम् आवददेव श्रुतौ देवेष्वाघोषेथा मानो वीरो जायताम् कर्मण्यो यगुं सर्पेणु जीवामयो बहूनाम सद्वशी इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागं सुर इरावती धेनुमतिः भूतगं सूयवसिनी मनवे यशस्ये व्यस्कब्धाद्रोदसी विष्णुरेते दाधार पृथिवीमभितो मयूखैः प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञन्नयतं माजी इह्वरतमत्र रमेथा वर्ष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवुत वा पृथिव्या महो वा विष्णवुत वान्तरिक्षात् हस्तौ प्रणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोतसव्यात्
विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममेरजागंसि यो अस्कभाजदुत्तरम् सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा कृणुष्व पाजः प्रसितिन्न पृथ्वी याहि राजे वामभागम् इभेन त्रिष्वेमनुप्रसितिन्द्रो नानोस्तासि विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः तव भ्रभास आशुया पतञ्चनुस्पृशधृशताशोषुचानः तपोगुष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो विसृज विश्वगुल्काः प्रतिस्पशो विसृजतूर्णितमो भवापायुर्विशो अस्या अदब्धः यो नो दूरे अघशगं सोजो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरादधर्षीत् उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्वन्यमित्रागम् ओषतात्तिग्महेते यो नो अरातिगं समिधानचक्रे नीचातन्धक्ष्यतसन्न शुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रतिविद्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्या अन्यग्ने अवस्थिरा तनुहि यातु जूना अञ्जामि मजामिं प्रमृणीहि शत्रून् सते जानाति सुमतिञ्यविष्ठय इव ते ब्रह्मणे गातुमैरत् विश्वा अन्यस्मै सुदिनानि राजोद्युम्नान्यर्यो विदुरो अभिद्यौत सेदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषाय उक्थैः पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदस्मै सुदिनासा सदिष्टिः अर्चामि ते सुमतिङ्घोष्यर्वाक्सन्ते भावाता जरतामियङ्गीः स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनुद्यून् इह त्वा भूर्याचरेदु पद्मन्दोषावस्तर्दी दिवागं समनुद्यून् क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः सपेमाभिद्युम्नातस्थिवागं सोजनानाम् यस्त्वा स्वश्वस्सु हिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन तस्य त्राता भवसि तस्य सखायस्त आतिथ्यमानुषग्जुजोषत् महोरुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोतमादन्वियाय त्वन्नो अस्य वचसश्चिकिद्धिहोतर्यविष्ठसुक्रतो दमूनाः अस्वप्नजस्तरनयः सुषेवा अतन्द्रासो वृका अश्रमिष्ठाः ते पायवः सद्ध्रियञ्चो निषद्याग्ने तव नः पान्त्वमूर ये पायवो मामते यन्ते अग्ने पश्यन्तो अन्धन् दुरितादरक्षन् ररक्षतान् सुकृतो विश्ववेदादिप्सन्त इद्रिपवो नाहदेभुः त्वया वयगं स धन्यस्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्यामवाजान् उभाषगं सा सूदय सत्यता ते नुष्ठुया कुर्नुह्यह्रयान अयाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोमगं शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसः पाह्यस्मान् द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात् रक्षोहणं वाजिनमाजिघर्मि मित्रं प्रतिष्ठमुपयामि शर्मा शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवासरिषः पातु नक्तम् विज्योतिषा बृहताभात्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा प्रादेवीर्माया सहते दुरेवा शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे उत स्वानासो दिविशन्त्वग्ने स्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ मदेचिदस्य प्ररुजन्ति भामानवरन्ते परिबाधो अदेवीः ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे भृरसि नारिरसि परिलिखितगं रक्षः परिलिखिता अरातय इदमहगं रक्षसो ग्रीवा अपि कर्तामि योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विश्व इदमस्य ग्रीवा अपि कृन्तामि दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धतान् लोकः पितृषदनो यवोऽसि यवयास्मद्वेषः यवया रातेः पितृनागं सदनमस्युद्दिवग्रस्तभानान्तरिक्षं प्रण पृथिवीन्द्रगं हद्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु मित्रावरुणयोर्ध्रुवेण धर्मणा ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिगं सुप्रजावनिगं राजस्पोषवनिं पर्योहामि ब्रह्मदृगं क्षत्रं दृगं प्रजां दृगं राजस्पोषं दृगं
घृतेन द्यावा पृथिवी आपृणेथामिन्द्रस्य सदोषि विश्वजनस्य छाया परित्वा गिर्पणो गिर इमा भवन्तु विश्वतो वृद्धायुमनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टज इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य ध्रुवमस्य इन्द्रमसीन्द्रायत्वा रक्षोहणो बलगहनो वैष्णवान् खनामीदमहन्तं बलगमुद्वपामि यन्नः समानो यमसमानो निचखानेदमेन मधरं करोमि यो नः समानो यो समानो रातीयति गायत्रेण छन्दसा बबाढो बलगः किमत्र भद्रं तन्नौ सह विराडसि सपत्नः सम्राडसि भ्रातृव्यः स्वराडस्यभिमातिः विश्वाराडसि विश्वासान्नाष्ट्राणागं हन्ता रक्षोहणः बलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहणो बलगहनो वनयामि वैष्णवान् यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवयाराति रक्षोहणो बलगहनो वस्त्रणामि वैष्णवान् रक्षोहणो बलगहनोऽभिजुहोमि वैष्णवान् रक्षोहणौ बलगहना उपदधामि वैष्णवी रक्षोहणौ बलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी रक्षोहणौ बलगहनौ परिस्तृणामि वैष्णवी रक्षोहणौ बलगहनौ वैष्णवी बृहन्नसि बृहद्ग्रावा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद विभूरसि प्रवाहणो मह्निरसि हव्यवाहनः श्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदा उशिगसि कविरङ्घारिरसि बम्भारिरभस्युरसि दुवस्वाच्छुन्ध्यूरसि मार्जालीयः सम्राडसि कृशानुः परिषद्योऽसि पवमानः प्रतक्वासि नभस्वानसमृष्टोऽसि हव्यसूदरतधामासि सुवर्ज्योतिर्ब्रह्मज्योतिरसि सुवर्धामाजोऽस्येकपादहिरसि बुद्धियो रौद्रेणानीकेन पाहि मा आग्नेऽपि प्रिहि मा माहिगंसीः त्वगं सोमतनो कृद्भ्यो द्वेषोऽभ्योऽन्यकृतेभ्य उरुयन्तासि परुथग्गः स्वाहा जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा यन्नो अग्निर्परिवः कृणोत्वयं मृधः पुर एतु प्रभिन्दन् अयगुं शत्रूञ्जयतु जर्हृषाणोऽयं वाजञ्जयतु वाजसातौ उर्विष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नः कृधि घृतं घृतयोनेऽपि बप्रप्रयज्ञपतिन्तिदा सोमो जिगाति गातु विद्देवानामेति निष्कृतमृतस्य योनिमासदमदित्याः सदोऽस्यदित्याः सद आसीद एष वो देव सवितः सोमस्तगं रक्षध्वं मा वोदभदे तत्त्वगं सोमदेवो देवानुपागा इदमहं मनुष्यो मनुष्यान् सह प्रजया सह राजस्पोषेण नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इदमहन्निर्वरुणस्य पाशात् सुवरभिः विक्षेषं वैश्वानरं ज्योतिरग्ने अव्रतपते त्वं व्रताना अमृतपतिरसि या मम तनोस्त्वय्यभूधियगं सामयिया तव तनोर्मय्यभूदेशा सा त्वयि यथा यथन्नौ ॐ व्रतपते व्रतिनोर्व्रतानि अत्यन्यानगान्नान्यानुपागामर्वाक्त्वापरैरविदं परोवरैस्तन्त्वाजुषे वैष्णवं देवयज्ञायै देवस्त्वा सविता मध्वानक्त्वोषधे त्राजस्वैनग्स्वधिते मैनगो हिगंसीर्दिमग्रेण बाले क्षीरन्तरिक्षं मध्ये नमाहिगंसीः पृथिव्या सम्भव वनस्पते शतबलुषो विरोह सहस्रबलुषा विवयगं रुहेम यन्त्वा यज्ञस्वधितिस्तेति जानः प्रनिनाय महते सौभगायाच्छिन्नो राजस्सुवीरः पृथिव्यै त्वान्तरिक्षाय त्वा மேலே பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த திருமாங்கலத்துக்குரிய கிரமங்களை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டு இருக்க தாயார் எம்பெருமானோடு அவதரிக்கும் காலத்தில் எப்படி இருக்கிறாள் என்ற ஆழ்வார்களின் ஈரச்சொற்கள் மூலம் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? பந்தார் மெல்லிவரல் நல்வளை தோழி பாவை பூமகள் தன்னொடும் உடனே வந்தாய் என் மனத்தே மன்னி நின்றாய் மால்வண்ணா மழை போல் ஒளிவண்ணா சந்தோகா பௌழியா தைத்தரியா சாமவேதியனை நெடுமாலே அந்தோ நின் அடியன்றி மற்றறியேன் அழுந்தோர் மேல் திசை நின்று அம்மானே என்று தெரெழுந்தோர் பெருமானிடத்திலே
ஆழ்வார் திருமங்கையாழ்வார் மனமுருகி சாதித்தருளிய இந்த பாசுரம் தாயாரின் மனம் பிரானிடமும் எம்பெருமானின் மனம் இவளிடமும் தாயாரிடமும் என்றும் ஒன்றி இருக்கிறது. இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி இந்த திருவாங்கல்யத்தை பிராட்டிக்கு எம்பெருமான் திருமுன்பும் நாமும் காணும்படி செய்து மேலே தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க என்ற வேளையில் நன்றாக பிரார்த்தித்து கல்யாணானாம் அவிகலநிதிஹி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவச்சசா மௌலி மந்தாரமாலா சம்பத்திவ்யா மது விஜயநக சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷாதேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேனு என்று அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வேண்டும் பலன்களை வேண்டியவாறே தந்திரொளி அவளும் திவ்ய தம்பதிகளாக அனைத்து பக்தர்களிடம் கூடவே துணையிருந்து ரட்சிக்க வேண்டும். வரும் காலங்களில் அடியார்களை ரட்சிப்பது ஒன்றே இவர்களின் பேராக அமைந்துள்ளது. சந்தோகா பௌழியா தைத்தரியா சாமவேதியனே என்று உபனிஷத்துக்களே இந்த திவ்ய தம்பதிகள் என்னும்படியாக திருமங்கையாழ்வார் சாதித்திரளியுள்ள ஒரு உயர்ந்த பாசுரம். இந்த உபனிஷத்துகள் உணர்த்தும் பொருள் அடியவர்களை காப்பதற்கு தேவையான யாவற்றையும் அறியும் தன்மை உடையவர்கள். ஏனெனில் பந்தார் மெல்விரல் நல்வளை தோழி பாவை பூமகள் என்று ஆழ்வாரின் ஈரச் சொற்களால் போற்றப்படும் பூமகளான அல்லிமலர் பாவை அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார் இவனிடத்தை என்றும் பிரியாது இருப்பதால் அன்றோ அடியார்களை விடாது காக்கும் தன்மையை உடையவன் ஆகின்றான். அந்த உயர்ந்த குணத்தை கல்யாண குணத்தை பெற்றவனாகின்றான். அல்லது நாம் செய்யும் குற்றங்களை கணிசித்துக் கொண்டே இருப்பான். மேலே இப்பொழுது இந்த திருமாங்கல்ய தாரணத்திற்கு பிறகு ஆழ்வார்களின் ஈர பாசுகளின் மூலம் இந்த திவ்ய தம்பதியின் அருளை பெற்று மால்வண்ணனான் இவன் இயல்பான கருணை உள்ளத்தோடு கூடிய தாயாரோடு மிதுனமாக இருந்து ஆழ்வாரின் உள்ளத்திலே பொருந்தி எழுந்தருளி இருக்கின்றான். ஆழ்வார் உள்ளத்திலே பொருந்தி இருப்பது போல இப்பொழுதும் இந்த காலத்திலும் இந்த கலியுகம் கலி முத்தி இருக்கும் காலத்திலும் சம்சாரிகள் நம்மை போன்ற சம்சாரிகள் எம்பெருமான் திருவடியை சேவிக்க வேண்டும் அருளை பெற வேண்டும் என்று வந்திருக்கும் அடியார்களுக்கும் அப்பொழுது எப்படி இருந்தானோ அந்த கல்பத்திலே இப்பொழுதும் அந்த அர்ச்சை திருமேனி இருந்து கொண்டு அனைத்து அடியார்களையும் நோக்கி கொண்டு பாரபட்சம் இல்லாது இவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் இவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள் என்று இல்லாது தன்னை நோக்கி கொண்டு வரும் என்று பகவத் சிந்தனையிலே இருக்கும் அனைத்து அடியார்களையும் மட்டுமே நோக்கி கொண்டு இருக்கும் அவர்களுக்கு அனுகிரகிக்கும்படியான இந்த உயர்ந்த கல்யாண குணத்தை உடையோடு அந்த எண்ணத்தோடு உடைய இந்த திவ்ய தம்பதிகளை நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுவே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து மற்றொன்று உபதேசம். திவ்ய தம்பதிகளின் திவ்ய திருவடிகள் ஒழிய அடியார்களுக்கு பேர் ஏது, புகழ் ஏது? இவர்களே பக்தர்களின் வினை தீர்க்கும் மருந்தாக இருந்து கொண்டு அண்டி வரும் பக்தர்களை அணைத்து கொண்டும் ரட்சித்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். தாமரை கண்ணனின் மனதிற்கு இனியவளான தாயாரின் அருள் இல்லாமல் பலனை எளிதில் பெற இயலாது. பக்தர்கள் அவர்களுடைய மனத்தால் விருப்பப்படும் அந்தந்த பலன்களாக இருப்பவள் இந்த தாயார். இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து மேம்பட்ட பொருள்களில் நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருப்பவள். பத்மமாலினி, தாமரையாள், மலர்மகள் என்று போற்றப்படும் தாயார் அனைத்து செல்வங்களையும் தன்னிடத்தே கொண்டவள். எதற்காக கொண்டவள்? அண்டி வரும் அடியார்கள் வேண்டி வருவதை அவர்களுக்கு கொடுக்கவே தான் அனைத்தையும் தன் பட்சத்திலே வைத்துக்கொண்டு இந்த அடியார்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அனுகிரகிப்பதை இப்பொழுது சேர்த்தியில் நாம் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்பூர ஆர்த்தியோடு நன்றாக பிரார்த்தித்து எம்பெருமான் அதாவது சேர்த்தியிலே சேர்க்க வேண்டும். தாயார் நமக்கு அனைத்தும் அருள்வாள். ஆனால் பிரானோடு சேர்ந்திருக்கும் சேர்த்தியிலே நாம் பலனை பெறுவது என்பது மேன்மை பெற்றது. இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி பெருமான் சார்த்தி கொண்ட திருமாலியை பிராட்டிக்கு தாயாருக்கும் இந்த மாலை மாற்றல் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நாம் சேவிக்கும் பொழுது அவர்களின் அருளை பெறுவதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பது ஆழ்வார்கள் தங்களுக்கு எந்த பலனும் வேண்டி பெற்றார்கள் இல்லை. வரும் காலத்தில் அடியவர்கள் எந்த துன்பம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக ஒரு வழியை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதை கற்றுக்கொண்டாலே போதும். மேலே இந்த திருமாங்கல்ய தாரணம் மாலை மாற்றல் அனைத்தும் சேவித்து அனைத்து பக்தர்களும் மங்கள பலன்களை பெற்று வாழ்வாங்க வாழ அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல்.
इंद्रो योनिं य बभूवामृता सर्वर्धा मानः सुजन्मा अदब्धा सर्भ्राजमानो हे एव त्रितो धर्ता दाधारत्रीणि आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपुंशकृषे पुरूणि धासुर्योनिं प्रथम आविवेशायो वाचमनोदिताञ्चिकेता यस्ते शोकाय तन्वं निरे चक्षरद्धिरण्यं शुचयो न स्वाहा अत्र दधेते अमृतानिनामास्मे वस्त्राणि विष एरायन्तां प्रयदेते प्रातरं पूर्व्यङ्गस्सदस्तद आतिष्ठन्तो अजुर्यं कविशुषस्या मातरा आरिहाणे जाम्ये धुर्यं पतिमेरा एथां तदूषुते महत्प्रोधमन्नमः कविः काव्येनाकृणोमि यत्संयञ्चावभियन्ता आवभिक्षामत्रामहि रोधा चक्रे वा वृधेते सप्तमर्यादाः कवयस्तदक्षुस्तासामिदेका मभ्यं रोगात् आयोरः स्कम्भ उपामस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ उतामृता सर्वृता येमि कृण्वन्नसूरात्मा तन्वाहास्तत्सुमद्गुः उत वा शुक्रो रत्नं दधाच्चूर्जया वा यत्स चातेह विर्दाः उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादामह्वयन् स्वस्तये दर्शन्नता वारुणजास्ते विस्था आवरव्रातदकृणवो वपुंषि अर्धमर्धेन पयासा वृणक्षर्धेन सुष्मवर्धसे अमुरा विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा పట్టపురాణివి నీవు పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు ధర్మము విచారించ తగు నీకు అమ్మా పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు ధర్మము విచారించ తగు నీకు అమ్మా పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు కమలజు కన్న తల్లి కాముని కన్న తల్లి కమలజు కన్న తల్లి
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ